Okay, we'll start with the MCQs of solid state. So in the introduction part, we had the classification of solids into two main types depending on the arrangement of constituent particles. We can either have crystalline solids or amorphous solids. So the first question, amorphous solids के लिए, which is a true statement, possesses sharp melting point. Now, this is the property of crystalline solids. Crystalline solids have an orderly or a perfect arrangement of the constituent particles. That is why they have a sharp melting point and they do undergo a clean cleavage when cut with a knife. So ये भी property crystalline का है. Do not undergo clean cleavage when cut with a knife. Now this will be the property of amorphous solids. Hence third is the answer and possesses orderly arrangement over long distances. Long range order बोलते हैं. ये भी crystalline solids का property है. और एक प्रॉपर्टी था अनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक. जो अमोर्फस सॉलिड्स है दे आर आइसो और अनाइसो. Do they have the same properties in all directions or not? I, amorphous solids are isotropic. जो crystalline solids है वो अनआइसोट्रोपिक होते हैं. Next, tetragonal crystal system has the following unit cell dimensions. So we had 14 brevis lattices with the subtypes. 7 main type के crystal systems हैं. उसमें से tetragonal system have 2 subtypes to be remembered as TB. मतलब one will be primitive and other will be body centered. And the crystallographic dimensions were A is equal to B but not equal to C, and alpha, beta, gamma were equal to 90 degree. So this is the answer. And which of the following are correct axial distance and angles for the rhombohedral system? Now, rhombohedral is just a twisted form of the perfect cubic crystal, जहां पर the sides and the angles will be equal, but angles आपस में equal होने के साथ they will not be equal to 90 degree. ठीक है, alpha will be equal to beta equal to gamma, but not 90 degree. So it's a perfect cube which is distorted such that the angle is non-90 degrees. So the answer is 1. That's rhombohedral. Now this is important. Number of brevis lattice in 2 dimensions are. अब जो brevis lattices हमने डिस्कस किया है they were obviously the 3-dimensional lattices, cubic वाले थे. ठीक है, अब 2 dimension में if I have been given the lattice points like the arrangement in the symmetrical or the unsymmetrical manner, तो symmetrical में मेरे पास square वाला 2-dimensional brevis lattice आ सकता है जिसमें A2 and A1 sides will be equal and the angles will be 90 degree. यहाँ पर the sides unequal which will give you a rectangular brevis lattice in 2 dimension. ठीक है, और अगर लेटाइस पॉइंट्स को अनअलाइंड मैनर में रखेंगे तो पैरेललोग्राम जैसे कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें देयर विल बी 3 टाइप्स व्हिच विल हैव द डिफरेंस इन देयर एक्सियल डिस्टेंस और द एक्सियल एंगल्स. तो ओवरऑल जस्ट रिमेंबर कि 3D ब्रेवाइस लेटाइसेस 14 होते हैं और 2 डायमेंशन में देयर आर 5 ऑफ देम. 2 डायमेंशनल ब्रेवाइस लेटाइसेस देयर आर 5. जस्ट द नंबर टू बी रिमेंबर्ड. नेक्स्ट, body centered cubic and simple cubic. Potassium has BCC structure. Now, the moment you read a BCC structure, ध्यान आना चाहिए Z is equal to 2 with the nearest neighbor distance as 4.52 angstrom. Now, nearest neighbor distance मतलब अगर I have 2 atoms which are close to each other, meaning just touching each other, then their nearest neighbor distance is always equal to 2r. नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस 2r के बराबर होता है. मतलब ये जो 4.52 एंगस्ट्रॉम है ये 2r के बराबर है. Its atomic weight is 39, which is the molar mass, and the density in kilogram per meter cube will be how much?
तो डेंसिटी के लिए एक मॉडिफाइड और सिंपल फॉर्मूला मैंने दिया है, जहां पर यू गेट द डेंसिटी इन द यूनिट ऑफ ग्राम पर सीएम क्यूब by using the formula 10 Zm by a cube into 6. 10 Zm by a cube into 6. ठीक है, यहां पर a जो है आपको स्टैंडर्ड नोटेशन में सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर pm टू cm वाला कन्वर्जन भी बताया था। जैसे 4.52 एंगस्ट्रॉम एक्चुअली इज नथिंग बट इक्वल टू 452 पिकोमीटर, जिसको अगर कन्वर्ट करोगे तो 4.52 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो पीएम को सीएम बनाने का सिंपल तरीका क्या है, 452 को स्टैंडर्ड नोटेशन में रखो एंड 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, so by the calculations of the molar mass in gram per mole and the a cube and the Avogadro number का powers we get 10 at the top। तो ये सब डेरिवेशन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर the a or the edge length is not directly given, the radius is given। Now tell me what is the relation between r and a for a bcc structure। for a bcc r and a का relation it's 4r equals to √3a। ठीक है, तो अब 2r का वैल्यू दिया है तो 2 इंटू 4.52 ये एंगस्ट्रॉम में है, इट विल बी इक्वल टू √3 इंटू a। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें याद रखो। फॉर द FCC द रिलेशन इज 4r इक्वल टू √2a। तो वहां पर कभी अगर √2 डिवाइड हुआ और यहाँ पे जो √3 डिवाइड हो रहा है उसके रेसिप्रोकल्स याद रखो, इट विल ईज द कैलकुलेशन। द इनवर्स of √3 which is 1.732 is 0.58। mug up this, it's going to be very helpful। and the reciprocal of √2 is 0.7। रेसिप्रोकल ऑफ √3 0.58 होता है, रेसिप्रोकल ऑफ √2 0.7 होता है। मेक अ नोट ऑफ दिस। तो यहाँ पर a का वैल्यू विल बी इक्वल टू, दिस बिकम्स ऑलमोस्ट 9.04 मतलब 9, एंड √3 नीचे जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल 0.58 हो जाएगा। तो 0.58 टाइम्स 9, 9 8 72, 45 and 7 52, and this will be 5। so we get 5.22 as the value। तो ये हो जाएगा 5.22 एंगस्ट्रॉम, या फिर you can write it as 522 picometer। now look at the calculation। we are going to find the density which requires a cube। मतलब यहाँ पर अगर मैं स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको pm से cm करूँ तो 5.22 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर है, और इस वैल्यू का मुझे क्यूब फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इन डेंसिटी वाला कैलकुलेशन यू आर गोइंग टू गेट द क्यूब ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, लेकिन 3 डिजिट तो नहीं, 2 डिजिट का क्यूब आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। नाउ आइदर यू कैन गो थ्रू द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर 3 टाइम्स, या फिर एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देना। हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। जैसे यहाँ पर 52 का क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 4 प्लेसेस में आपको 4 नंबर्स लेकर आना है। सबसे पहले द फर्स्ट इज द फर्स्ट डिजिट का क्यूब। फर्स्ट प्लेस में फर्स्ट डिजिट का क्यूब दैट इज 125। लास्ट प्लेस में सेकेंड डिजिट का क्यूब डालना है, दैट इज 8। उसके बाद बीच वाले 2 डिजिट्स में फॉर द सेकेंड वन, सेकेंड प्लेस में करना क्या है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर इंटू द पावर मतलब 3। पहले नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर इंटू 3, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 50 इंटू 3 150। और थर्ड प्लेस में उल्टा करना है, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का स्क्वायर इंटू द पावर, यानी 5 4 20 इंटू 3 60। तो फर्स्ट प्लेस इज क्यूब ऑफ द फर्स्ट नंबर, सेकेंड प्लेस में फर्स्ट नंबर स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर इंटू द पावर, थर्ड प्लेस में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का स्क्वायर इंटू द पावर, एंड लास्ट प्लेस में सेकेंड डिजिट का क्यूब।
अब यहाँ पर क्या करना है, हमें हर प्लेस में से एक एक डिजिट को नीचे लेना है। मतलब यहाँ पर एक ही डिजिट है तो 8 लिख दिया। उसके बाद 60 का सिर्फ 0 ले लेंगे और 6 को कैरी करेंगे पहले वाले नंबर में, तो ये 156 हो गया। अब 156 में से खाली 6 लेना है और 15 को कैरी करना है, तो 15 को कैरी करोगे तो ये हो जाएगा 140। दैट्स द आंसर ऑफ 52 का क्यूब। 52 क्यों यूज किया मैंने, बिकॉज ये वाला जो आंसर है 5.22 है, हमको सिर्फ 2 डिजिट कंसिडर करना है राउंड ऑफ करके। तो 5.22 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया इंटू 5.2। तो डेसिमल जो है आपका 3 प्लेसेस के लास्ट से 3 प्लेसेस के बाद, तो इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 141 का आंसर आता है। समझा? 2 डिजिट का क्यूब आपको डायरेक्टली सॉल्व करने आना चाहिए। वैदिक मैथ्स का सिंपल ट्रिक यहाँ पर बताया है, विच विल हेल्प यू टू फाइंड द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो मान लो अगर 5.28 आता तो आप उसको राउंड ऑफ करके 5.3 करते और उसका क्यूब निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब let's move on to the calculations. Now look at the calculation, it will become very easy. So the density is equal to 10 into BCC है तो Z2 है, मोलर मास दिया हुआ है 39 अपॉन A क्यूब की वैल्यू 141 है into 6. So 2 times 3, 3 times 13, 13 into 10 is 130, so it's 130 upon 141. Approximate करें तो 13 upon 14 gives you the answer as 0.9 and 10 100 7 za 0.97 के आसपास, सॉरी 0.907 के आसपास। अब दिस इज इन ग्राम पर सीएम क्यूब, ग्राम पर सीएम क्यूब, और आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में फाइंड आउट करना था, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। So the answer comes out to be 907 के आसपास। The correct answer is option 4. पूरे सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल का ये एक ही इंपॉर्टेंट टाइप है जहां पर डेंसिटी को फाइंड आउट करना होता है यूजिंग द वैल्यू ऑफ जेड, मोलर मास एंड द एज लेंथ। 3 चीज चाहिए, और एज लेंथ अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो दे माइट गिव यू इन द फॉर्म ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर। तो आपको ए और आर का रिलेशन यूज करके ए निकालना है और फिर उसका क्यूब वहां पर सब्सटीट्यूट करना है। और क्यूब के लिए मैंने एक सिंपल ट्रिक बता दिया आपको। Got it? Yes. Okay. Coming to next section of hexagonal closed packing, which is nothing but HCP. So direct factual questions है. How many number of atoms are present in HCP? What was Z for HCP? Z is 6 for a hexagonal closed packing. तो उसके tetrahedral voids कितने होंगे? Now if the number of atoms are 6, then tetrahedral voids are double and octahedral voids are equal to the number of atoms. So 12 and 6 respectively will be TV and OV. Coordination number HCP का 12 होता है. And what is the coordination number of an atom in its own layer in a closed packed arrangement? तो हेक्सागोनल में क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट में पहला लेयर और दूसरे लेयर में अलाइनमेंट नहीं होता है। ठीक है, द अरेंजमेंट इज लाइक दिस। तो अगर एक सिंगल लेयर में बात करें तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा वो पूछा है। तो ऑफ कोर्स इट इज हेक्सागोनल इन नेचर, मतलब अगर 2 डायमेंशनल सिंगल लेयर की बात करें तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स ओन लेयर विल बी इक्वल टू 6। एंड फ्रैक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेस इन AB टाइप अरेंजमेंट, तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है PF वो आता है 0.74, तो इसका जो एम्प्टी स्पेस है वो 1 माइनस हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 0.26। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ HCP अगर पूछा जाए तो वो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है 24√2 R³ के बराबर होता है। 24√2 R³।
ठीक है, तो सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है वेर वंस द थिंग्स आर अंडरस्टूड द फैक्ट्स आर टू बी रिमेम्बर्ड। आप एग्जामिनेशन टाइम पे सोच नहीं सकते हो, या सोचने के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे HCP है तो ये 6 का वैल्यू कैसा है वो मैंने बताया है, राइट। तो 12 कॉर्नर्स होते हैं, 3 बॉडी सेंटर होता है और 2 फेस सेंटर होता है। उसके हिसाब से 17 लेटाइस पॉइंट्स है, उसका कंट्रीब्यूशन अगर डालोगे तो Z की वैल्यू 6 आती है। बट दोज थिंग्स आर डायरेक्टली टू बी रिमेम्बर्ड। नेक्स्ट, FCC। The octahedral voids in a face-centered cubic, FCC और CCP दोनों एक ही होता है। FCC और CCP are located at, तो OVs दो जगह लोकेटेड होता है। दे आर एट ऑल द एज सेंटर्स एंड एट द बॉडी सेंटर। अब एज सेंटर होते हैं 12 और बॉडी सेंटर होता है 1, इसीलिए द आंसर इज 2। नेक्स्ट, in a face centered lattice of X atoms, Y atoms occupy half of TV and 1/4 of OV. What is the formula of the compound? तो फेस सेंटर्ड लेटाइस ऑफ X एटम्स, तो X की वैल्यू 4 हो गई, और अगर X 4 है तो TVs 8 के बराबर होगा और OV 4 के बराबर होगा। तो अब बोला है कि Y जो है वो हाफ ऑफ TV एंड 1/4 ऑफ OV ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो हाफ ऑफ 8 4 एंड 1/4 ऑफ 4 इज 1, so it will be equal to 5। तो x 4 है और y 5 है, तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज x4 y5। नेक्स्ट, इन अ CCP स्ट्रक्चर ऑफ x एटम्स, नाउ CCP FCC के जैसा होता है, तो x की वैल्यू 4 हो गई। जैसे जैसे रीड करो, जस्ट अक्यूमुलेट द डेटा एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। y एटम्स ऑक्यूपाई हाफ ऑफ OV, तो x 4 है तो OV 4 है, तो y जो है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 4 विच विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब if one y atom and x atom from each unit cell is replaced by z, then the formula of the compound will be, मतलब पहले फॉर्मूला क्या था आपका, x4 और y2। अब बोला है कि एक y और एक x को z से रिप्लेस कर दिया, तो नाउ x बन जाएगा 3, y बन जाएगा 1, और उसके जगह पे 2z एड ऑन हो जाएगा तो z2 हो जाएगा। तो XYZ के फॉर्म में फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी x3 y1 z2, दैट्स ऑप्शन 2। These are very simple type of questions. For a FCC, the number of atoms are 4, तो OVs are equal to 4, TVs are equal to 8। तो जो भी रेशियो में दूसरे एटम का ऑक्यूपेंसी है, आप उसको अप्लाई करके यू कैन गेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट, अब दिस इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ध्यान देना। The number of atoms in 100 gram of an FCC crystal with the density given as 10 gram per cm cube and cell edge equal to 100 picometer is equal to, कितने एटम्स है 100 ग्राम ऑफ FCC क्रिस्टल में। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सा रिलेशन आपको बता देता हूं कि इफ आई हैव 1 यूनिट सेल ऑफ FCC, द नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल टू 4, और एक एटम का मास जो है वो मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। सिंगल एटम हैज अ मास ऑफ मोलर मास अपॉन Na, तो 4 एटम्स का मास कितने के बराबर होगा, 4 टाइम्स द मोलर मास अपॉन Na, ग्राम्स, राइट। 1 unit cell of FCC has 4 atoms and एक एटम का मास m by Na होता है, तो 4 एटम का 4m by Na, तो 4 एटम इतना वे करता है, तो 100 ग्राम में कितने एटम्स होंगे वही तो ढूंढना है। अंडरस्टूड?
If 4 atoms weighs this much gram, 100 ग्राम में कितने एटम्स है वो ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए एक ही अननोन है, दैट इज मोलर मास, और वो अननोन आपको डेंसिटी के थ्रू मिल जाएगा। तो आप पहले डेंसिटी को अप्लाई कर लेते हैं। तो डेंसिटी का शॉर्टकट फॉर्मूला 10Zm बाय a क्यूब इंटू 6। सो यहाँ पर 10 इज द डेंसिटी इन ग्राम पर cm क्यूब एज रिक्वायर्ड, यूनिट्स को चेक कर लेने का, एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू BCC का 2, सॉरी FCC है, सॉरी FCC का 4, मोलर मास हमें जानना है m, एंड a का क्यूब। नाउ एज लेंथ इक्वल टू 100 पिकोमीटर है, तो pm को cm कन्वर्ट करोगे तो 1 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होगा, और इसका क्यूब मतलब सिर्फ 1 ही रहेगा, एंड इंटू 6, 10 10 2, मोलर मास आ गया 6/4, दैट इज 1.5 ग्राम पर मोल। बच्चे जैसा कैलकुलेशन था ये वाला। और अगर क्यूब में कोई कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब x के वैल्यू ढूंढना है, तो इट विल बी 100 टाइम्स 4 अपॉन 4 इंटू मोलर मास आ गया 1.5, और Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23। तो ये 6 और 4 इंटू 1.5 कैंसिल ऑफ हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 इंटू 10⁻25। मतलब these many number of atoms are there in 100 ग्राम of the crystal। 100 ग्राम का FCC क्रिस्टल में इतने एटम्स होंगे। So the answer is 1। This is the second type of numerical in solid state जो डेंसिटी के रिलेटेड है। समझा? एक सिंपल सा ये चीज ध्यान रखना है। अब इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल भी पूछा तो भी वही है, एक यूनिट सेल में इतना मास होता है, तो 100 ग्राम में कितने यूनिट सेल होंगे। तो आपको y पूछा तो y भी ढूंढ सकते हो, सेम फ्लो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड प्लेन इन FCC lattice contains arrangement of atoms as shown by circle। ये वाला अरेंजमेंट कौन से प्लेन में होगा? तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो FCC में एच पे कोई एटम नहीं रहता है, फेस सेंटर पे रहता है, और कॉर्नर पे रहता है। तो यहाँ पर दो ही एटम का अरेंजमेंट दिखेगा इस प्लेन में। फिर एक फेस अगर ले लिया तो उसमें 4 एटम कॉर्नर पे होंगे और एक एटम फेस के सेंटर में होगा, तो अरेंजमेंट मैच नहीं हो रहा है। अब ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है, बॉडी का डायगोनल है। यहाँ पर कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है, और ये आपका फेस का सेंटर है, तो यहाँ पर भी एटम होगा और यहाँ पर भी एटम होगा। नाउ लुक एट द अरेंजमेंट, द गिवन एंड द थर्ड ऑप्शन का अरेंजमेंट मैचेस, मतलब ये अरेंजमेंट FCC में बॉडी डायगोनल में देखने मिलेगा, तो आंसर थर्ड है। ठीक है, और इस केस में यहाँ पर एटम रहेगा कॉर्नर वाला और यहाँ पे फेस के सेंटर वाला, 3 ही एटम दिखेगा, बट इस प्लेन में ये वाला अरेंजमेंट मैच करता है, तो आंसर थर्ड। क्लियर? यस। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Which one of the following schemes of ordering closed packed sheets of equal sized spheres does not generate close packed lattice? मुझे बताओ, क्लोज पैकिंग के लिए द एटम शुड बी अरेंज्ड इन एन अलाइंड मैनर और अनअलाइंड मैनर। क्लोज पैकिंग के लिए if I have the atoms in the aligned manner versus the atoms are arranged in unaligned manner, कहां पर एफिशिएंसी ज्यादा आती है? अलाइन। aligned has more number of voids, अनअलाइंड में voids कम हो जाता है। ये क्यूबिक वाला फॉर्म है और ये हेक्सागोनल वाला फॉर्म है, तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी 58% ही आता है और यहाँ पर 74% आता है। पैकिंग एफिशिएंसी इज ऑलवेज मोर व्हेन द
लेयर्स आर नॉट अरेंज्ड इन एन अलाइंड मैनर, ये थ्योरी में समझाया हुआ है। तो अब अगर ऑप्शंस देखोगे तो कौन सा क्लोज्ड पैक्ड शीट्स डू नॉट जनरेट द greater efficiency? What should be the answer? ABC. This is well known as CCP, which has a higher efficiency. ABAC सब लेयर अलग अलग है, मतलब अलाइनमेंट फर्स्ट एंड थर्ड का मैच कर रहा है, वापस ए और ए का मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी अच्छा खासा एफिशिएंसी देगा। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जो अपने सिलेबस के लिए है, लेकिन डेफिनेटली दिस विल गिव यू अ ग्रेटर एफिशिएंसी। अब्बा ए बी बी ए। अब यहाँ पर बी और बी अलाइंड मैनर में है। The moment you see the two layers in the aligned manner, its efficiency is going to be less. तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट देखोगे ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी, मतलब एक्चुअली पैटर्न जो रिपीट हो रहा है ना वो यहाँ तक है, ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक ये है कि इफ द एटम्स आर अलाइंड एफिशिएंसी इज लेस, हेंस आंसर इज थर्ड। खत्म। नेक्स्ट अबाउट द voids. A double triangular void surrounded by three spheres above and three spheres below is called, it's the definition of octahedral void. इसीलिए हम octahedral void के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 बोलते हैं, और इसका शेप octahedron has 8 faces। तो 8 फेसेस के हिसाब से नाम octahedral आया, लेकिन नंबर ऑफ स्फीयर्स जो ओवी को बनाता है वो 6 होता है। एंड दिस इज हाउ वी आर ड्रॉन, एक ट्राइंगुलर वॉइड ऐसा और दूसरा ऐसा, ये जो स्पेस है ये ओवी होता है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ हाइपोथेटिकल सॉलिड सी एटम्स फॉर्म सीसीपी लैटिस। सीसीपी मतलब एफसीसी, ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज whatever conclusion we had derived for CCP, it is based on FCC only. So C atoms form CCP lattice with A atoms occupying all the TV, सारे के सारे TVs occupy कर रहा है, and B atoms occupy all the OVs. TV OV कहाँ होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, TVs are basically at the body center of 8 small cubes which are formed in a cube. मतलब यहाँ पर और यहाँ पर आप जब ब्रेक डाउन करोगे तो एक क्यूब से 8 छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे। हर क्यूब के बॉडी सेंटर पे टीवी होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। आगे A and B atoms are of appropriate size such that there is no distortion in the CCP lattice। मतलब कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है और उनका साइज उस तरह से अरेंज किया है। Now, if a plane is cut as shown, then type of voids and their numbers which are present at the cross section would be। तो इस पर्टिकुलर प्लेन में कौन कौन से voids आएंगे वो आपको फाइंड आउट करना। सो आई कैन सी द कॉर्नर ओवर हियर, कॉर्नर पे कोई भी void नहीं होता है। आई कैन से वन एज सेंटर, ये आपका फेस सेंटर, ये एज सेंटर और ये फेस सेंटर। उसके बाद ये आपका बॉडी सेंटर हो जाएगा, और ये छोटे छोटे जो स्फीयर्स दिख रहे हैं दे विल बी टीवीज, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो वॉइड्स के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूं तो ओवीज आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, तो ये ओवी है, एंड एट द एज सेंटर, तो ये भी ओवी है ये भी ओवी है। तो 3 ओवीज मिल गए। ओवी कितने हैं? 3। और टीवीज जैसे मैंने बताया, दिस इज अ टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये 4 टीवी होंगे। समझा ना? आप क्लियरली समझ सकते हो कि कोई भी प्लेन क्यूब में काटोगे तो उसमें ओवीज और टीवीज कितने आएंगे, कहाँ कहाँ आएंगे, उनकी पोजीशन आप ध्यान रखना है। तो द आंसर इज 3 ओवी एंड 4 टीवी। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर में से। इफ यू नो द चैप्टर वेल, इफ यू नो द फैक्ट्स वेल,
with understanding, there's no problem in solving the MCQ. It is the simplest chapter of physical chemistry, mind it. Next, radii ratio and ionic structure. तो रेडियस रेशियो का एक टेबल है जिसके रेंज आपको ध्यान रहने चाहिए 0.155 टू 0.225 225 to 414 414 to 732 and 732 to 1. तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 4 6 8 होते हैं एंड वॉइड होता है ट्राइंगुलर पीवी ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक. उसके करस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स और उसका डिटेलिंग भी हम कर चुके हैं. तो नाउ MgO exist in NaCl type lattice rock salt structure. तो जैसे ही बोलते हैं NaCl type मतलब जो भी NaCl के conclusions थे, now they will be applicable for magnesium oxide as well. So number of nearest neighbor of Mg2 plus ion are. Now NaCl में दो coordination number थे. For any ionic solid there are always two coordination number. One is coordination number of Na plus, which will be equal to number of chloride ions touching Na plus, that was equal to 6. And coordination number of chloride, which is equal to number of Na plus ions touching Cl minus, वो भी 6 था. हमने 6:6 का coordination number इसको identify किया था. तो अब क्वेश्चन है Mg2 प्लस के नियरेस्ट नेबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे? It will be 6 oxide ions. Option 3. Again, these are direct facts with understanding. आगे, if the distance between Na plus and Cl minus ions in NaCl crystal is 8 picometer, what is the length of the cell edge? Length of the cell edge. Now, for NaCl crystal, अगर हम उसका एक कोई फेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दिस कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय द अनायंस, ये सारे Cl माइनस आयंस हैं, एंड द Na प्लस ऑक्यूपाई ऑल द ओवीज. तो यहाँ पर भी आपका Cl माइनस होता है और ये पूरा पार्ट जो है वो Na प्लस ऑक्यूपाई करता है, एजेस. तो अगर मैं ये वाले डिस्टेंस को ऑब्जर्व करूं तो दिस इज इक्वलेंट टू R of Cl minus plus 2R of Na plus एंड प्लस R of Cl minus, मतलब ये ट्वाइस हो जाता है और वो एज लेंथ के बराबर होता है. ठीक है. अब पूछा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन Na plus एंड Cl minus इज a, तो डिस्टेंस बिटवीन Na plus एंड Cl minus आयंस मतलब R of Na plus and R of Cl minus A दिया हुआ है. Arushi, pay attention. Don't talk to someone else. Yes. तो आपको बोला है कि ये जो डिस्टेंस है A के बराबर है तो इसका एज लेंथ ऑफ द सेल एज क्या होगा? इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट डिस्टेंस. ठीक है. तो यहाँ पर A जो है वो सेल एज नहीं है. A या इसको अगर आप अल्फा ले लेते हो तो बेसिकली आंसर 2 अल्फा हो जाएगा. कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने जस्ट अल्फा लिख दिया है. तो 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा डिस्टेंस. ठीक है. तो फॉर दी NaCl crystal the important facts were Cl minus occupy FCC lattice points, Na plus occupy all the OVs. Coordination number for Na plus Cl minus both are 6:6. R of Na plus and R of Cl minus का जो addition है that is equal to A by 2. ठीक है. फिर इसके साथ ZnS और सीजियम क्लोराइड, ये और दो हैलाइड्स या आयोनिक स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किया था. आगे, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज डेराइव्ड फ्रॉम फ्लोराइड स्ट्रक्चर बाय. नाउ समरी आपको बता देता हूं. एंटी फ्लोराइड इज द नेम गिवन टू ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स. एग्जाम्पल Na2O था. वर्सेस फ्लोराइड्स
is the name given to the structure of alkaline earth metal fluorides. एग्जाम्पल था कैल्शियम का फ्लोराइड. अब इसमें मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि फ्लोराइड में जो अरेंजमेंट है वो उल्टा है और एंटी फ्लोराइड जो नाम उल्टा है उसमें अरेंजमेंट सीधा है. फ्लोराइड में अरेंजमेंट उल्टा है मतलब जनरली अनायंस लेटाइस पॉइंट्स ऑक्यूपाई करता है और कटायन छोटे होने की वजह से वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं. लेकिन फ्लोराइड is a structure wherein because of the small size of the anion, the cation here occupy the FCC lattice points and the anion occupy the voids. तो ये सारे TVs को ऑक्यूपाई कर रहा होता है. Whereas एंटी फ्लोराइड में सीधा अरेंजमेंट है. सीधा मतलब यहाँ पे अनायन lattice points को ऑक्यूपाई करता है as expected, as discussed, as seen in most of the ionic structures, and the cations occupy all the voids, the TVs. तो ये था फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड का डिफरेंस. तो क्वेश्चन पूछा है कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर is derived from fluoride structure by, answer is interchanging the position of positive and negative ions in the lattice. And that's what is the fluoride anti-fluoride का difference. Clear? और एक चीज यहाँ पर कैल्शियम आयन अपॉन फ्लोराइड आयन के नंबर की बात करें तो FCC लेटाइस पॉइंट्स मतलब 4 कैल्शियम आयंस होंगे और उसके टीवी सारे ऑक्यूपाई कर रहे हैं मतलब 8. So that is how we get the empirical ratio 1:2 and hence the formula Ca1F2 मिलता है. और एक चीज बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर फॉर्मूला 4:8 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 हो जाता है. मतलब कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर इज टू फ्लोराइड आयन 8:4 होगा. 8:4. ये पूरा समरी था. दैट्स इट. इतना ही था फ्लोराइड में. सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं Na+/O-2 का रेशियो लूँ तो Na+8 आएंगे, ऑक्साइड 4 आएंगे, इसका रेशियो होगा 1:2. हेंस द फॉर्मूला Na1 सॉरी कुछ गड़बड़ किया 2:1 सॉरी. हेंस द फॉर्मूला Na2O1 मिलता है. और अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर यहाँ पूछा जाए तो Na+O-2 का 4:8 आएगा. ठीक है. तो ऐसा भी मैंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट बताया था कि अगर नंबर ऑफ एटम्स x:y है, x:y, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर y:x हो जाएगा. ठीक है. ऐसा एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था इन वन ऑफ द पेपर्स. नेक्स्ट, strontium chloride has a fluoride structure. So which of the following statement is true for the structure of strontium chloride? अब स्ट्रोंशियम क्लोराइड में फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है तो कटाइन किधर जाएगा? लेटाइस पॉइंट्स. एंड जो अनायन है दे वुड बी ऑक्यूपाइंग द TVs. So the correct answer is the strontium ions are in a FCC arrangement, option 2. Now 10th question is about the spinel structure. The spinel structure is a structure wherein the anions are normally oxides, sulfides or selenides, generally from the group 16 family. And उसमें दो cations होते हैं. One is a divalent cation, other is a trivalent cation. ठीक है. तो अनायन ऑक्साइड या सल्फाइड होता है जो FCC लेटाइस पॉइंट्स ऑक्यूपाई कर रहा होता है एंड नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस 4 के बराबर होता है. उसके बाद the fact was the divalent cation occupies 1/8 of TV and the trivalent cation occupies half of the OV. तो अब कैलकुलेट करने पर 1/8 ऑफ TV 8 होता है तो ये 1 हो जाता है और ये हाफ ऑफ OV मतलब 2 हो जाएगा. अब फॉर्मूला देखो A1B2O4 के बराबर. दिस इज हाउ वी गेट द स्पाइनल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला. स्पाइनल. ठीक है.
इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट वाला था Mn3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड का, जिसमें Mn2+ भी होता है, Mn3+ भी होता है। उसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने क्रोमाइट ओर को पढ़ा था, FeCr2O4, ये भी उसके फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है, AB2O4 को। दिस टू एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्पाइनल के अलावा देयर वाज उल्टा स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। इसमें भी देयर इज अ डाइवेलेंट कटायन, ट्राइवेलेंट कटायन एंड द अनाइन। अनाइन ऑक्यूपाई द FCC लैटाइस पॉइंट्स, इसलिए 4 के बराबर। ठीक है, the divalent cation here occupies 1/4 of the OV, which becomes equal to 1. एंड जो ट्राइवेलेंट कटायन है ये OV और TV दोनों को ऑक्यूपाई करता है। इट ऑक्यूपाइज 1/8 ऑफ TV plus 1/4 of OV, and this is how we get 2 over here. अगेन फॉर्मूला AB2O4 ही होता है, लेकिन जो ऑक्यूपेंसी है कटायंस का वो अलग है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है Fe3O4, मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइट, Fe3O4। इसमें Fe2+ भी होता है और Fe3+ आयन भी होता है। So there are 4 important structures additional to the NaCl, ZnS and CaCl I have discussed. और ये सारे नोट्स में मैंने डिटेल में दे के रखा है सेम तरीके से। ठीक है, पढ़ना कभी टाइम मिले तो स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल के स्ट्रक्चर में कटाइंस और अनाइंस क्या पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा होता है, ये आपको ध्यान रखना है विद एग्जांपल्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछते हैं। सो द आंसर इज ए कटायन, ये अ कटायन नहीं है, ए कटायन ऑक्यूपाइज 1/8 ऑफ टीवी एंड बी कटायन ऑक्यूपाइज 1/2 ऑफ ओवी, ये करेक्ट है। ठीक है, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल चारों मैंने वापस डिस्कस कर दिए हैं, और जितना मैंने डिस्कस किया है उतना ही है सिलेबस के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है उसमें। नेक्स्ट, इन द क्रिस्टल लैटाइस ऑफ डायमंड कार्बन एटम्स अडॉप्ट। अब यहाँ शॉर्टकट दिया था कि डायमंड का स्ट्रक्चर किसके जैसा है, डायमंड हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू ZnS, and once you know that it is similar to ZnS, मतलब the carbon atoms adopt FCC arrangement with 50% of TVs, आंसर है 1। अब इसके भी कुछ फैक्ट्स मैंने बताए थे। डायमंड के लिए द Z इज इक्वल टू FCC के 4 और 50% ऑफ TVs मतलब और 4, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, डायमंड में 8 कार्बन एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल। इसका पैकिंग फ्रैक्शन 34% या 0.34 के बराबर होता है। क्लियर, और R और A का रिलेशन यहाँ पर 8R इक्वल टू √3A के बराबर होता है। ये सिमिलर टू BCC है, सिमिलर, सेम नहीं है, उसमें 4R इक्वल टू √3 है, यहाँ छोटे कार्बन आइटम्स है इसलिए 8R इक्वल टू √3A के बराबर। तो ये 3 फैक्ट्स है डायमंड के लिए जो आपको ध्यान रखना है, इनमें से कुछ भी डेटा पूछा जा सकता है। Z 8 है, क्रिस्टल लैटाइस ZnS के जैसा है, पैकिंग फ्रैक्शन 0.34 के बराबर, एंड R और A का रिलेशन अगर कोई न्यूमेरिकल आ भी गया तो 8R इक्वल टू √3 याद रखो। नेक्स्ट, डिफेक्ट्स। As a result of Schottky defect, the density remains the same, increases or decreases? Schottky vacancy defect है, जहां पे cations and anions are missing from the lattice structure. अब थियोरी में हम जनरली बोलते हैं equal cations and equal anions missing. This is true only if the ionic solid is in the ratio 1:1. जैसे NaCl में अगर शॉर्टकी डिफेक्ट होगा ना तो इक्वल Na+ और इक्वल Cl- मिसिंग होगा, लेकिन
अगर कैल्शियम क्लोराइड जैसा कोई आयोनिक स्ट्रक्चर है तो उसमें to maintain the electrical neutrality there will be every 1 calcium के लिए 2 Cl minus will be missing, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा ना। तो यहाँ पर कहीं सारे रेफरेंस बुक्स में ऐसा ही स्टेटमेंट देते हैं कि शॉटकी इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू equal cations and equal anions missing from the lattice structure. This is partly correct only for NaCl type of halides. Actual statement होना चाहिए cation and anions missing from the lattice points in order such that the electrical neutrality is maintained. समझ में आ गई बात? Yes. और क्योंकि यहाँ पर आयंस मिसिंग होते हैं इसलिए इसका डेंसिटी कम हो जाता है। शॉटकी या वेकेंसी डिफेक्ट के लिए डेंसिटी डिक्रीजेस। इसके सामने था अपने पास फ्रैंकल या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसमें देयर वाज a defect in such a way that the cations or the anion whichever is smaller rather than occupying the actual lattice site it occupies the interstitial site. तो यहाँ पर वो लेटाइस के स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकलता है इसलिए उसका जितना डेंसिटी था वो सेम ही रहता है। यहाँ पर डेंसिटी रिमेन्स द सेम, डी इज फिक्स्ड कांस्टेंट होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शॉटकी वर्सेस फ्रैंकल का। देन F centers in an ionic crystal are, F centers is the name which is derived from a Greek word Farbin center, which is equivalent to or known as color centers. तो अपने जो हेलाइड्स है LiCl, NaCl, KCl, उनके जो कलर्स दिखते हैं दे आर बेसिकली ड्यू टू द F centers. होता क्या है जब NaCl को हीट करते हैं इन द वेपर ऑफ सोडियम, when NaCl crystal is heated in the atmosphere or vapor of sodium, तो सोडियम हीट होने की वजह से सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो every sodium vapor will be converted into Na plus and E minus. Now this Na plus ion which is at the surface combines with the Cl minus ions from the lattice. अपने lattice में Na plus Cl minus Na plus है, ठीक है। तो ये Na plus इस Cl minus को खींच के लेके जाता है और अब यहाँ पर अनायन की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है। और ये जो अनायन का डेफिशिएंसी है ना, दिस इज सेटिस्फाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पर मेटल आयंस जो है एक्सेस में हो जाता है इसीलिए इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो ना मेटल एक्सेस में हो चुका है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसका पूरा नाम अगर आप नोट्स में देखोगे तो इट्स मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वेकेंसीज, ड्यू टू अनायन वेकेंसीज। और वो अनायन का वेकेंसी जब इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पर कलर जनरेट होता है। दैट इज द रीजन NaCl ऑन हीटिंग अपीयर्स टू बी येलो इन कलर। समझा? Yes. Yes, sir. So F centers in an ionic crystal are lattice sites which contain the electrons. Lattice sites which contain the electrons. तो इसको हम बोल सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वेकेंसीज। एक और डिफेक्ट था मेटल एक्सेस के अंदर ही, दैट वाज फॉर ZnO। जब ZnO को हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है इनटू जिंक प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पर ये जिंक के आयंस जो है, सॉरी दिस इज जिंक प्लस 2, जिंक के आयंस जो है वो एक्सेस में हो जाते हैं एज कंपेयर टू द ऑक्साइड। तो हियर द डिफेक्ट व्हिच अराइजेस बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ ZnO is called metal excess defect due to extra cations. यहाँ पे अनाइन वेकेंसीज था, यहाँ पर एक्स्ट्रा कटायंस की वजह से होता है।
ठीक है, तो ये दोनों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, which is called as metal excess defect due to anion vacancies as metal excess defect due to extra ions. और इसी के अंदर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में तीसरा डिफेक्ट था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जो जनरली ऑक्साइड्स ऑफ आयन के लिए देखा जाता है। जैसे Fe0.98O अगर दिया है ना, तो इस केस में अगर मैं इसको इक्विवेलेंटली लिखूं Fe98 और O100, तो 100 ऑक्साइड के लिए Fe कम है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। So these were the three additional defects apart from Schottky, Frenkel, and the third type of defect, which was a stoichiometric defect. The generally alloys में आता है, substitutional impurity defect and the interstitial impurity defect. आगे, in NaCl versus AgCl, if the radius of Na plus is greater than Ag plus, then NaCl has higher tendency to show Schottky defect, a lower tendency to show Schottky defect, higher tendency to show Frenkel, या both have equal tendency to show Frenkel and Schottky defect. Now Schottky defect के लिए the cation and anions should be of similar sizes, और Frenkel defect के लिए जो cation है that should be of smaller size. फ्रैंकल के लिए कटाइन छोटा होना चाहिए, तभी तो इंटरस्टिशियल के अंदर घुसेगा। और शॉटकी में मिसिंग आयंस कब होगा, जब कटाइन और अनाइन इक्वल साइजेस के होंगे तब। तो यहाँ पर बोला है कि Na+ का साइज Ag+ से बड़ा है, तो फिर NaCl का कौन सा डिफेक्ट ज्यादा फेवरेबल होगा? द कटाइन इज बिगर, then its tendency to show Schottky defect will be larger. The first option. And which of the following statements are correct in context of point defect in a crystal? तो ये जितने भी डिफेक्ट्स हमने पढ़े हैं ये सब पॉइंट डिफेक्ट्स है, लाइन डिफेक्ट्स अपने सिलेबस में नहीं है। AgCl has anion Frenkel defect and calcium fluoride has Schottky defects. AgCl has cation Frenkel defect and calcium fluoride has anion Frenkel defect. AgCl as well as calcium fluoride have anion Frenkel defect. AgCl as well as calcium fluoride has Schottky defects. Now AgCl we know is a special example of Frenkel defect, जहां पर Ag+ छोटा होने की वजह से इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, तो इसको कटाइन फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे क्योंकि यहाँ कटाइन छोटा है। लेकिन कैल्शियम फ्लोराइड में ये उल्टा अरेंजमेंट दिखाता है, फ्लोराइड है ये, इसमें फ्लोराइड आयन छोटा होने की वजह से वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा होता है, तो इस केस में जो इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा ना वो फ्लोराइड करेगा, तो इसको बोलेंगे अनायन फ्रैंकल डिफेक्ट। समझा? फ्रैंकल डिफेक्ट में हमेशा जरूरी नहीं है कि कटाइन ही इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई करे, इट डिपेंड्स कि दोनों आयंस में से छोटा कौन सा है, जो छोटा है वो इंटरस्टिशियल को ऑक्यूपाई करेगा। जनरली कटाइंस छोटे होते हैं तो कटाइन फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाएंगे, बट फ्लोराइड हमें ऑलरेडी पता है कि उल्टा अरेंजमेंट होता है छोटा साइज होने की वजह से, इसलिए वो अनायन फ्रैंकल डिफेक्ट बताएगा। दैट्स व्हाई द आंसर इज 2। क्लियर? Yes. Coming to MCQs from exercise 2. In a FCC unit cell, a line is drawn from a corner such that it passes through no octahedral or tetrahedral void. वो लाइन कौन सा होगा? बॉडी डायगोनल, एज, फेस डायगोनल या नन ऑफ दिस? A line drawn from the corner such that it passes through no OV or TV. बॉडी डायगोनल से अगर लाइन क्रॉस करते हैं तो बॉडी के सेंटर पे ओवी आ जाएगा, तो वो ऑप्शन गलत है।
एच के थ्रू पास करेंगे तो एच पे तो ओवी होता है, तो यहाँ पर भी नहीं कर पाएंगे। फेस डायगोनल में अपने पास कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, फेस सेंटर पे एटम होता है, लेकिन इन पोजीशंस के ऊपर कोई भी तरह का वॉइड नहीं होता है। इसलिए ये जो लाइन की बात कर रहे हैं दैट इज द फेस डायगोनल, एफ डी। द फ्लेम कलर्स ऑफ मेटल आयंस आर ड्यू टू Na प्लस Li प्लस का जो कलर है वो किसकी वजह से था? ड्यू टू metal access. मेटल एक्सेस। In which of the following compounds the cations are present in alternate TB? Alternate TB. सब देखो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, रॉक सॉल्ट, जिंक ब्लेंड या स्पेलराइट, फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड। किसमें 50% ऑफ टीवीज ऑक्यूपाई हो रहा था? ZNS. ZNS। ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में बताया है, तो डायरेक्ट आंसर है इसका। आगे, अ कंपाउंड MPXQ has a cubic close packing CCP arrangement of X. CCP मतलब यहाँ पर X जो है सारे कॉर्नर्स और फेस सेंटर को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, जो आप देख सकते हो। Its unit cell structure is shown below, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो X जो कि CCP अरेंजमेंट है वो तो डायरेक्टली कितने होंगे? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। CCP FCC के बराबर यानी 4। अब M देखो, M इज ऑक्यूपाइंग एज सेंटर 1 2 3 एंड 4। एज सेंटर्स जो होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, तो 4 इंटू 1/4 होगा, प्लस एक बॉडी सेंटर ऑक्यूपाई करता है जिसका कंट्रीब्यूशन 100% होता है। आता है समझ में ये? 4 एज Yes. सेंटर है, 1 बॉडी सेंटर है, कंट्रीब्यूशन 1/4 और 1 है रिस्पेक्टिवली, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो आपसे पूछा है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? इट्स M2X4। एम्पिरिकल बोला तो सिंपलेस्ट रेशियो MX2 के बराबर। आंसर इज ऑप्शन 2। एक एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर जनरली आस्क्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लिटरली बहुत सिंपल। Now exercise 3 previous year questions. When molten zinc is cooled to solid state, it assumes HCP structure. Then the number of nearest neighbors of zinc atom will be. Nearest neighbor मतलब Coordination. और HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 12. Next, this is an important question. Cesium bromide crystallizes in a body-centered cubic lattice. Now, for a cesium bromide crystallizing in body-centered, what is Z का value? What is Z for cesium bromide in BCC? It's similar to cesium chloride. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि BCC के देखकर नॉर्मली हम Z को 2 लिखते हैं, but that is applicable only for an element, a crystal consisting of single atoms. But cesium bromide तो एक आयोनिक क्रिस्टल है, cesium chloride के जैसा अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पर the bromide occupies the body centered, bromide occupies the corners and जो cesium ion है that occupies the body का center. तो यहाँ पर ब्रोमाइड आयंस एक होते हैं, सीजियम आयन भी एक होता है। टोटल नंबर ऑफ CSBr units in 1 unit cell. Hello. In 1 unit cell will be only equal to 1.
बस इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो जैसे हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं वही है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला 10 Zm by a³ into 6। ये फॉर्मूला में डेंसिटी आपको ग्राम पर cm³ में मिलता है, मोलर मास को ग्राम पर मोल में डालना होता है, ए जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्टेड होना चाहिए। तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो 10 into z की वैल्यू 1 इंपॉर्टेंट। सीजियम क्लोराइड या सीजियम ब्रोमाइड का क्वेश्चन अगर आता है तो Z1 सब्स्टिट्यूट करना है, इनटू मोलर मास सीजियम और ब्रोमाइड का टोटल हो जाता है 213 213 अपॉन ए का वैल्यू 436.6 pm। तो pm को cm बनाने के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन 4.366 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ करूं तो 4.4 लेकर आप इसका क्यूब फाइंड कर सकते हो इंटू 6। अगेन 44 का क्यूब ढूंढना है, वापस बता देता हूं, 4 डैशेस बनाओ, 1 2 3 4, पहले डिजिट का क्यूब ऑन द फर्स्ट, लास्ट डिजिट का क्यूब ऑन द लास्ट। फिर ये सेकेंड प्लेस में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर इंटू 3, दैट इज 16 इंटू 4 64 इंटू 3, 60 60 60 180 एंड 12 और 192। और क्योंकि ये सेम नंबर है तो यहाँ पर भी 192 आएगा। फिर क्या करना है, इसका एक डिजिट नीचे लो, दूसरे को कैरी करो, तो ये 198 हो गया, उसका 8 नीचे लो, 19 कैरी करो, 19 कैरी किया तो 211, 211 का 1 नीचे लो और 21 कैरी करो, तो 74 84 एंड 85। क्लियर? So this is how you can solve the cube related numericals, density को solve कर सकते। आगे ये भी एक important question है, AIPMT में आ चुका है। If NaCl is doped with 10⁻⁻4 mole% of strontium chloride, the concentration of cation vacancies will be। अब डोपिंग मतलब क्या, एक कटायन दूसरे कटायन से रिप्लेस होने वाला है। तो अगर मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है जिसको स्ट्रोंशियम क्लोराइड से डोप किया जा रहा है, तो 2 Na+ जब निकलेगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने के हिसाब से एक स्ट्रोंशियम ऑक्यूपाई होगा और 2 Na+ there will be equivalent 1 strontium ion which will be doped। तो एक पोजीशन ये स्ट्रोंशियम ऑक्यूपाई कर लेगा और एक वैकेंसी क्रिएट होगी, मतलब हर एक स्ट्रोंशियम के लिए एक वैकेंसी जनरेट होगी। अब मान लो NaCl को डोप करते हैं AlCl3 के साथ, तो एक हाउ मेनी Na+ should be replaced for 1 aluminum ion? कितने Na+ इक्विवेलेंटली जाएंगे तो एक अल्यूमिनियम आएगा? 3, बिकॉज ये +1 है और ये +3 है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए, मतलब 3 Na+ इक्विवेलेंटली 1 Al+3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज क्रिएट होगी, 3 Na+ के लिए 2 वैकेंसीज, राइट? तो इस केस में एक Na+ के लिए कितनी वैकेंसी होगी? 3 के लिए 2, तो एक के लिए 2/3। मैथ्स है, मैथ्स, इसको मैथ्स बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये तो सिंपल था क्योंकि हर Na+, हर 2 Na+ के लिए एक स्ट्रोंशियम आएगा तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो अब यहाँ पर कितना स्ट्रोंशियम क्लोराइड है वो देखो। तो स्ट्रोंशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं देखूं तो 10⁻⁻4 मोल परसेंटेज, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100 और मोल मतलब 6 × 10⁻23, इतने कटाइंस होंगे।
तो ये -6 और ऊपर जाएगा तो 17, तो 6 इंटू 10⁻17। और जितने स्ट्रॉन्शियम आयंस होंगे उतने वैकेंसीज होंगे। आइदर ये स्ट्रॉन्शियम आयंस बोल दो या फिर उतनी वैकेंसीज बोल दो। आंसर इज ऑप्शन 4। समझता है? यू हैव टू जस्ट बैलेंस द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, नथिंग एल्स। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, नीट 2017, which of the following is incorrect statement? FeO 0.98 has non-stoichiometric metal deficiency defect. True or false? तो इसको हम लिख सकते हैं Fe 100 और O 98। कौन डेफिशिएंट है इसमें? (98) ऑक्सीजन है, मतलब डेफिशिएंसी अनायन का है, कटायन का नहीं है। तो इट इज नॉट मेटल डेफिशिएंसी, इट इज मेटल एक्सेस रिलेटेड एग्जांपल। तो ये वाला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर 1 ही। आगे देखते हैं, डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ क्रिस्टल्स विद शॉर्टकिट इफेक्ट। यस, ये तो हमें पता है, ट्रू है। NaCl सॉलिड इंसुलेटर है। सॉलिड NaCl इज इंसुलेटर, यस, कंडक्ट नहीं करेगा। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर है, और क्वार्ट्ज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, यस। Frankel defect is favored in those ionic compounds in which sizes of cations and anions are almost equal. Now ये स्टेटमेंट भी गलत है। इनफैक्ट नीट 2017 में इस क्वेश्चन में एरर था क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट है, 1 and 4। तो क्वेश्चन को बोनस दिया गया था कि फ्रैंकल डिफेक्ट फेवर नहीं होगा जब साइजेस इक्वल होंगे, शॉर्टकट डिफेक्ट फेवर्ड होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत था, मतलब आंसर 1 and 4 दोनों ही। नेक्स्ट, a compound is formed by cation C and anion A. The anions form hexagonal closed packed lattice. Anion A hexagonal closed packed lattice मतलब A 6 के बराबर। And cation जो है that occupies 75% यानी 3/4 of the OVs. अब OVs की अगर बात करें तो it is 3/4 of the number of ions के बराबर OVs होता है, यानी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 2 3 9/2 के बराबर। तो अब आपका C/A का फॉर्मूला क्या बनेगा? 9/2:6। दैट इज 9/2/6। ये 3 3 ये 3 2 3/4 का रेशियो आएगा, यानी C3 होगा, A4 होगा, आंसर 4 हो गया। सिंपल है, HCP मतलब 6, OV 6 होगा, उसका रेशियो दिया है 3/4 ऑफ OV, बाद में C और A का रेशियो ले लो, फॉर्मूला तैयार। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड विथ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जब भी मेटल डेफिशिएंसी होगा ना तो मेटल कम होगा और अनाइन ज्यादा होगा। यहाँ देखो प्रीवियस में FeO 0.98 दिया था, तो इसमें अनायन एक्सेस में है। अब यहाँ निकल 0.8 O दिया है, मतलब ये निकल 98 ऑक्सीजन 100 के बराबर है ना। तो ये मेटल डेफिशिएंसी का एग्जांपल है। अब crystal contains nickel +2 and +3 ions. The fraction of nickel existing as nickel +2 ions in a crystal is. हाँ, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, ध्यान देना। Ni 98 and O 100 है। ये 98 निकल एटम्स जो है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज निकल +2 एंड निकल +3। लेट द नंबर ऑफ निकल +2 आयंस बी x, जो हमें ढूंढना है। +3 आयंस 98 - x हो जाएगा, हाँ कि नहीं? अब ये पूरा जो NiO है that will have a 0 charge, and that 0 charge will be equal to +2 charge of X Ni +2 ions.
+3 charge of 98 minus X Ni+3 ions and 100 oxide ions with a charge -2, and this sum will be equal to 0. सिंपल redox concept लगाया है. इसका +2 चार्ज, इसका +3 चार्ज और ऑक्सीजन 100 है तो -200 का चार्ज होगा. अब मैथमेटिक्स है 2x प्लस 98 98 98 300 में 6 कम 294 माइनस 3x एंड -200 इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा -x, वहां जाएगा -94, तो x हो जाएगा 94. मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन परसेंटेज नहीं पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ निकल +2 आयंस 98 में से 94 तो निकल आयंस है, तो 94/98 आंसर है, विच इज वेरी क्लोज टू 1. तो आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 0.96 के बराबर होगा. और निकल +3 जो है दैट विल बी 4/98 विच इज नथिंग बट 0.04 का आंसर आ जाएगा. क्लियर? Yes. This is a numerical with regards to metal deficiency defect. 2019 का क्वेश्चन है नीट का. नेक्स्ट एम्स के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. In a gas lighter, mechanical energy is converted into electrical energy by using crystals of barium titanate. Barium titanate is. Now, whenever electricity is generated by the application of mechanical stress, मतलब मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होता है, उस पर्टिकुलर इफेक्ट को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. एंड दैट इज व्हाई जो बेरियम टाइटेनेट है वो पीजो इलेक्ट्रिक है और फेरो इलेक्ट्रिक भी है, बिकॉज इट इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एज वेल. एग्जाम्पल ध्यान रखना है फेरोमैग्नेटिक का. Next, which of the following arrangement correctly shows the magnetic moment of anti-ferromagnetic substance? Anti-ferromagnetic वो होता है जहां पर the dipoles will be in both the directions, rather magnetic dipoles will be in both the direction and they will be equal, such that magnetic dipoles होने के बावजूद भी, since the net dipole is equal to 0, it will be an anti-ferromagnetic substance. तो अब आप देखो यहाँ पर सारे एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इसको तो फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर दो नीचे हैं, सॉरी 4 5 सारों नीचे हैं, तो सारे सेम डायरेक्शन में, ये भी फेरो हो गया. यहाँ पर 4 अपवर्ड है 2 डाउनवर्ड है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपवर्ड है. तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों अगर डाइपोल्स है लेकिन नेट डाइपोल फिर भी 0 ना हो, तो इसको फेरी बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक. और अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हो लेकिन इक्वल हो, यहाँ देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी फेरो. आंसर 4. सिंपल है. ऑल डाइपोल्स इन द सेम डायरेक्शन फेरो. If in both direction but net is not 0, it's ferry. If in both direction net is 0, anti-ferro. पता. और पैरा और डाया तो आपको पता ही है क्या होता है. F center is the anion vacancy occupied by unpaired electron, anion vacancy occupied by electron, cation vacancy occupied by electron, या anion present in interstitial site. Carbon center or color center is the metal excess defect due to anion vacancies, and that vacancy is occupied by a unpaired electron. So it's electron नहीं, unpaired electron specifically. तो इन दोनों में more correct answer first होगा. And what is impact on benzene in magnetic field? बेंजीन एक नॉन पोलर सब्सटेंस है जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो रिपेल करेगा, so it will be weak repel. डायमैग्नेटिक होगा.
This is the piezoelectric effect with the example of lead zirconate, जहां पर there is a mechanical stress applied by compression. और ये compression के through the mechanical stress or the mechanical energy is getting converted into electrical energy. इसको बोलते हैं piezoelectric effect. PZE. टाइटेनेट्स जर्कोनेट्स आर piezoelectric. इसलिए पीछे वाले एग्जांपल में टाइटेनेट वर्ड दिखा मतलब piezoelectric तो है ही. ठीक है? Yes, sir. That's it. With this, I have completed the discussion of solid state. It's a really simple chapter. The facts related to the structures, coordination number, AR relation, density related numericals, the types of the defects. बस इतनी टॉपिक्स हैं जो अच्छे से करने हैं. Once again, I'm telling you, this is one of the simplest chapter of the entire physical chemistry. अंडरस्टैंडिंग एक बार आ गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. द फैक्ट्स आर डायरेक्टली टू बी रिमेंबर्ड. एक बार समझ गए तो आप सॉलिड स्टेट कभी नहीं भूलोगे. नहीं समझा हो तो फिर छोड़ ही देना. यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. यू कांट जस्ट मग अप कि इसका z 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 6 है. मग अप से नहीं चलेगा. HCP में भी 6 क्यों आया z, वो बताया मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैंने बताया है. ठीक है? तो समझने के बाद उसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे आप उतना टाइम वेस्ट करके आंसर तक नहीं पहुंच सकते हो. इट विल बी रियली वेस्ट ऑफ टाइम. आंसर शुड बी डायरेक्टली रिमेंबर. इसलिए डिस्कशन भी काफी जल्दी हो गया वंस यू नो द फैक्ट्स. फाइन. Yes.